بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بھکر کے انتہائی قابل احترام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت ملک کا ہر طبقہ اضطراب کا شکار ہے۔ حکمرانوں کی داخلی ناکامیوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر بھی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام یہاں جو موجود ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں، قومی شیرازے کو بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ دینی مدارس ہیں تو ان کے مسلمہ تنظیمات کے مقابلے میں نئے نئے بورڈز اور تنظیمات تشکیل دیے جا رہے ہیں، ان کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ مراعات یافتہ مدارس کے بورڈ تشکیل دیے جا رہے ہیں اور اس طرح سرکار کے کنٹرول میں مدارس کو لینے کے لیے دوسرے مدارس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مسلمہ تنظیموں سے ہٹ کر حکومت کے بنائے ہوئے بورڈوں میں جائیں اور وہاں مراعات حاصل کریں۔ اس پر بھی ایک سنجیدہ رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 20 جون کو پنجاب کی سطح پر ایک بہت بڑا مدارس کنونشن لاہور میں طلب کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام تنظیمات مدارس دینیہ اور تمام مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز بھی ہوگی تاکہ ہم اجتماعی مشاورت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنا سکیں اور پھر ساتھ ہی چاہے مدارس ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، ان کے وقف املاک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک وقف املاک بل لایا گیا ہے جو سرتاپا قرآن و سنت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو کسی طرح ایسی قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پورے ملک میں بھرپور طور پر اس کے خلاف مزاحمت شروع ہو اور ساتھ ہی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ عوام میں واپس جا رہی ہے رمضان شریف کے تعطل کے بعد، اور 4 جولائی کو انشاءاللہ سوات میں تاریخ کا بہت بڑا اجتماع ہوگا اور پھر انشاءاللہ العزیز 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا اور جس میں عوام کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کیا جائے گا تاکہ ایک ناجائز، ناکام اور نااہل حکومت سے اس ملک کو نجات مل سکے۔ ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے، نئے بجٹ میں جھوٹ بولنے کا پروگرام بنایا گیا ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بجٹ کے نام پر قوم کو دیا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے اور آئندہ کئی سال تک بھی اگر یہ حکمران رہے تو جمود ہی کا شکار رہے گا۔ کورونا کی برکت سے کچھ پیسے ملے ہیں ان کو جس پر یہ لوگ اترا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گارمنٹس کی برآمدات کے تمام آرڈرز اب پاکستان کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ برآمدات میں
फ़ायदा हुआ है तो उसको अपनी पॉलिसियों का हिस्सा बना रहे हैं। यार मज़ाक़ाख़ेज़ किस्म की बातें हैं। बिल्कुल इस तरीके से अगर इस मुल्क को, और फिर आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट को अभी तक अक्ल नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने मुदाखलत करके वहाँ इनकी हुकूमत बनाई, और अब कश्मीर के अंदर भी वो मुदाखलत करके लोगों पर दबाव डालकर PTI में शामिल करके उनकी हुकूमत बनवाने की तरफ जाना चाहते हैं। फिर क्या हम किससे तवक्को रखें कि कौन मुल्क को बचाएगा? हमें एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम तो हमारी ही बरकत से मुल्क बचा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि मुल्क को जितनी भी मुश्किलात दरपेश हैं और मुल्क जिन जिन अवामिल की वजह से कमज़ोरियों की तरफ जा रहा है, वो भी तो आपकी बरकतों की तरफ जा रहा है। तो इस हवाले से मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हम इस मुल्क में जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह उसी मकसद के लिए हमारी ज़िंदगी वक्फ है, और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अमेरिका को फिर एक दफ़ा हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फिर एक दफ़ा से बात। हम पाकिस्तान को कानूनी नहीं बनने देंगे किसी की। अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर निकल जाने के बाद पाकिस्तान में उनको अड्डे देने का क्या माना होगा? पाकिस्तान की तौक़ीर का क्या बनेगा? और जो मुल्क दुश्मन पॉलिसी जनरल मुशर्रफ ने बनाई थी, आज हवाला दिया जा रहा है कि 2001 के मुआहदे की बुनियाद पर हम ऐसा करेंगे। फिर कर भी नहीं सकते, फिर तरदीद भी करते हैं, फिर पेंटागन कहता है कि पाकिस्तान ने बात मान ली है, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको ऑन कर सकें, फिर तरदीद भी कर रहे हैं। तज़ब्ज़ुब की हालत में स्टेट चल रहे होते हैं, स्टेट कभी तज़ब्ज़ुब में नहीं चल रहे होते। साफ़ सुथरी पॉलिसी हमारी होनी चाहिए कि हम एक आज़ाद रियासत। आने वाला बजट आ रहा है, गोभी अनकरीब आ रहा है, उसके बारे में आप कहेंगे वो अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन बजट होगा? गोभी किस्म का होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मैशियत के लिए क्या होगा वो? आप क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो आपके लिए काबिल कबूल है, या मरियम नवाज का बयानिया? ये आप सहाफ़ियों की बातें हैं, और हमारी मीडिया की दुनिया में इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक सियासतदान की हैसियत से मुझे किसी भी पार्टी के अंदर झांकने का कोई हक़ हासिल नहीं। हम पूरी मुस्लिम लीग को एक मुस्लिम लीग समझते हैं। जो भी उसका नुमाइंदा बनकर PDM के इजलास में आएगा, हमारे फैसले में शरीक होगा, हमारे सलाम को। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमात को वापस लेने के वो हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो आपसे अलग हुई है, कि आप उन्हें वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस PDM में शामिल हो रहे हैं? अगर वो अपने किए गलती पर नादिम हैं और वो वापस PDM में आना चाहते हैं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। आप लोगों ने खाकान अब्बास साहब ने शौकात नोटिस भेजे होंगे? शौकात नहीं भेजा था, हमने उनको कहा था कि ज़रा वजाहत कर दीजिए कि आपने सरकारी बेंचों का वोट लेकर किस तरह लीडर ऑफ द पोजीशन का वोट जीता है, क्यों कर जीता है, ज़रा पता हमें होना चाहिए उसको। उन्होंने, और फिर हमने कहा था कि हम मीडिया को ये ख़त नहीं दे रहे आपकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, लेकिन उन्होंने अपने ही इज़्ज़त नफ्स को खुद पामाल किया कि उस ख़त को वाशगाफ किया और फाड़ दिया। मौलाना साहब, लॉन्ग मार्च की भी आपकी तरफ से बातें होती रही हैं, फिर उसके बाद आप हुकूमत को घर भेजने के हवाले से क्या जल्द अज जल्द कितना अरसा देते हैं? लाए अमल तैयार किया है, और कितना आप बताते हैं कि कब तक हुकूमत चले जाएगी घर से? आपके सियासी मुखालिफिन आप काम करते हैं, PDM का कोई सियासी मंशूर नहीं, सियासी एजेंडा नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर PDM का सियासी मंशूर नहीं है तो फिर कोई पार्टी का मंशूर है ही नहीं किसी का। बात बुनियादी ये है कि हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, लेकिन जब तारीख़ के औराक आप पलटेंगे तो इन 5 सालों के ऊपर या जितनी मुद्दत ये हुकूमत करेंगे उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाएगा, ये काला दौर तस्वुर किया जाएगा, ये नाकाम दौर तस्वुर किया जाएगा, ये अवाम दुश्मन दौर तस्वुर किया जाएगा, और अवाम दुश्मनी की सियासत जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं। मौलाना साहब क्या देखिए, सहाफ़त तो हम तो हमेशा आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं। जमहूरी माहौल है कहीं पर तो वहाँ पर सहाफ़त है, जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ सहाफ़त भी नहीं है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ बादशाह आते हैं
वहाँ सहावत भी उसके कंट्रोल में होती है। लेकिन यहाँ पर तो घरों में जा जाकर लोगों को मारना, पीटना, उनके टांगे तोड़ना, हाथ तोड़ना, तजलील करना, क्या ये हमारे रियासती इदारों का काम है? क्या इससे उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ती है? क्या इससे पाकिस्तान बचेगा? क्या इससे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा? तो इस किस्म की चीज़ों पर जो शिकायतें सामने आ रही हैं, इससे एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त जो है उस मुल्क पर वो कमज़ोर पड़ जाएगी। मौलाना साहब, महंगाई के हवाले से ये कहा जा रहा है महंगाई हुकूमत आई, आप तब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हुकूमत को घर भेजा जाए। उसके लिए आप लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, पार्टियों को जोड़ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐलानात भी मालूम कर चुके हैं कि अब घर गई। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत घर नहीं जा सक रही है, और आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है ऐसा कि एस्टेब्लिशमेंट उसको लाई है, एस्टेब्लिशमेंट उसकी पुष्पनाही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही उसके इस्तेहकाम का सबब बनी है। अच्छा जी, जद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी है। पब्लिक सपोर्ट जो है उसको हमने हासिल करना है। हमने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत के ख़त्म करने की बात नहीं करनी, हमने पब्लिक का सहारा लेकर इस हुकूमत को ख़त्म करने की बात। मौलाना साहब, आज से पहले कुछ माह पहले PDM की जो हुकूमत मुखालिफ तारीख की बड़े अरूज पर थी, और अब हम देखते हैं कि PDM इंतशार का शिकार हो चुकी है। आप क्या लगता है आपको एक दफ़ा फिर PDM उस भरपूर कुव्वत के साथ वफाकी हुकूमत पर सियासी हमला करने में कामयाब हो सकेगी जब इंतशार का शिकार हो चुकी है? 3 जलसे होंगे, एक स्वात में होगा, एक कराची में, और फिर उसके बाद अगस्त के अंदर इस्लामाबाद में होगा। तो अंदाज़ा लग जाएगा कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है। मौलाना साहब, जलसे होंगे, अब धरना भी दिया जाएगा। तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट पर जोर लगा रही है, उसे दबाव में डाल रही है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। अब आप क्या कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अगर हमारा दावा है कि जो कुव्वत उसको लाई है वो पुष्पनाही ख़त्म कर देगी। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही ख़त्म हो जाएगी, ये रेत के ढेर की तरह इसकी कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत मुल्क में है ही नहीं। आप एक खला से गुज़र रहे हैं, खला के दौर से गुज़र रहे हैं और खलाई दौर से गुज़र रहे हैं। ये न इंतखाब है, न इलेक्शन है, न इलेक्शन में नुमाइंदे हैं आवाम के, न इनको आवाम के नुमाइंदा रहने का। अपोजिशन मतलब नहीं जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के पास? जी, अपोजिशन हमायत हासिल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगी। हम आवाम की तायद हासिल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी सियासी साख, मुल्क में जो उसकी इज़्ज़त है, और हम सब चाहते हैं कि उसकी इज़्ज़त हो, कि मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चला जाता, लेकिन वो गैर जानिबदार हो जाए। गैर जानिबदार नहीं हो रही वो। फ़ौज की 2 ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह फ़ौज की नहीं हुआ करती। फ़ौज या बैरकों में या सरहदात पर। यहाँ पर पुलिस की तरह चौकों में खड़ी हो गई है और एक एक चीज़ को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। क्या फ़ौज तो हमारी आखिरी सहारा होता है। फ़ौज तो आखिरी एक हमारा ऑप्शन होता है, और वो अगर आए रोज़ जो है चौकों चौराहों पर पुलिस की तरह खड़ी रहेगी, क्या इज़्ज़त तौक़ीर उसकी रह जाएगी। साहब, ये बताइए, मौलाना यूसुफ ने जो हालिया बयान दिया है, उस हवाले से बतौर मौलाना आप पे क्या मौक़िफ़ है? क्या उसने बयान दिया कि कोई शादी की ज़रूरत नहीं है, बगैर शादी के पार्टनर रखा जा सकता है? मौलाना यूसुफ ये बातें वो लोग करें कि जो कुरान और सुन्नत पर यकीन रखते हों। जो लोग कुरान और सुन्नत पर यकीन ही नहीं रखते, वो जो चाहे कह दें, उसका क्या है? मौलाना साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीन के मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। सर, महंगाई के हवाले से